أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی وبا اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 106، لیسن نمبر 106، جس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے سورۃ البینہ۔ ہم اس کو مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ اس کو سمجھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے اچھے طریقے سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کو زبانی یاد کر لیں گے۔ آپ بار بار جو ہے یہ سن کے، بار بار ویڈیو کے ساتھ پڑھ پڑھ کے آپ کو اچھے طریقے سے زبانی یاد ہو جائے گی، پھر آپ اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا سکتے ہیں، نماز کے اندر آپ اس کو قرات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ہمارے سامنے کھل چکی ہے سورۃ البینہ۔ ہم اس کو اب پڑھیں گے انشاءاللہ مکمل قواعد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو مکمل قواعد سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی تاکہ آپ کا تلفظ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور قواعد کی ادائیگی جو ہے وہ بھی صحیح ہو جائے۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یاکو، لم یاکو، میم کو لم پڑھنے کے بعد دونوں ہونٹ مل جائیں گے، لم، پھر فوراً یاکو، یا کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، کاف کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لم یکن الذین، زال کو کھینچیں گے یا مدہ کی وجہ سے، نون کو چھوٹا پڑھیں گے، کفرو، کاف کو چھوٹا پڑھیں گے، فا کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، اور رو کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے، من اہل الکتابی، یہاں کوئی غنہ وغیرہ نہیں کرنا، من اہل، ہا کو گلے کے آخری حصے سے، اہل الکتابی، کاف کو باریک پڑھنا ہے، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچیں گے، کتابی، والمشرکین، اور کاف کو کھینچیں گے یا مدہ کی وجہ سے، منفکین، یہاں اخفا ہوگا، منفکین، اخفا کرتے ہوئے کاف کو باریک پڑھیں گے اور کھینچیں گے کاف کو یا مدہ کی وجہ سے، اور نون کو چھوٹا پڑھیں گے، حتی، ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے اور تا کو کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، حتی تا دیا، یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ جب الف کے اوپر جزم ہو تو یہ حمزہ ہوتا ہے، الف جو ہوتا ہے جب اس کے اوپر جزم ہو تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور زبر زیر پیش بھی ہو تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے، تا، اس طرح کر کے، تا تیا، تا کو چھوٹا، یا کو چھوٹا، ہو، ہا کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، تا تیا ہو، مل بینہ، ٹھیک ہے؟ بینہ تو ہے تو رکنے کی صورت میں بینہ، ٹھیک ہے؟ رسول من اللہ، را کو پر پڑھیں گے اور سین کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے، اور یہاں پر ادغام ہے، غنہ کریں گے، ادغام بالغنہ ہے، رسول من اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہا کو چھوٹا پڑھیں گے، یتلو، یتلو، تا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، یتلو نہیں پڑھنا، یتلو، لام کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے، صحفم، سواد کو پر پڑھیں گے، ہا کو گلے کے درمیان سے نکالیں گے، صحفم، یہاں ادغام بالغنہ ہے، غنہ کریں گے، فم، ٹھیک ہے؟ طہرا، تو کو پر پڑھیں گے اور ہا کو گلے کے آخری حصے سے نکالیں گے، مطہرتن، تن ہے تو رکنے کی صورت میں مطہر، فیہا، فا کو کھینچیں گے یا مدہ کی وجہ سے، ہا کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے، فیہا کتب قیمہ، کاف کو چھوٹا، تا کو چھوٹا، اور یہاں پر ہے اخفا، کتب قیمہ، قاف کو زبان کی جڑ سے، اور قیمتن ہے تو رکنے کی صورت میں قیمہ، وما تفرع،
मीम को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से, और रा के ऊपर शाद है पुर पढ़ेंगे रा को, और कौफ को जबान की जड़ से अदा करेंगे पुर पढ़ेंगे। कल्लज़ीना जाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना नून को छोटा पढ़ेंगे ऊतुल किताबा, ऊ को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से। तुल किताबा ता के ऊपर खड़ी जबर है। इल्ला लाम को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। मीम बादी, यहाँ नून की जगह पे हमने मीम को पढ़ना है, इसको कहते हैं इकलाब। इकलाब का माना होता है बदलना। नून की जगह पे हम मीम को पढ़ेंगे। जब नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पर नून की आवाज को मीम में बदल कर पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इकलाब। इल्ला मीम बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना, माँ के साथ भी खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से, और ये है मद वाजिब, इसको खींचेंगे। और अतहुमुल बय्यिना, हु को छोटा पढ़ेंगे। बय्यिना तू है तो बय्यिना रुकने की सूरत में। वमा उमिरू इल्ला, ये है मद जायज, इसको खींचेंगे 3 अलिफ के बराबर। उमीरू, ऊ को छोटा मीम को छोटा, और उमीरू खींचेंगे रू, और फिर मद जायज है, ठीक है। वमा उमीरू इल्ला, और लाम को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। लियाबुदुल्लाह, लाम को छोटा पढ़ेंगे और या को आइन के साथ मिलाते हुए आइन को गले के दरमियान से निकालेंगे। लियाबुदुल्लाह, बा को छोटा पढ़ेंगे और दाल को लाम से मिलाते हुए लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना, मुखलिसीना स्वाद को पुर पढ़ेंगे और इसको खींचेंगे या मद्दा की वजह से। नून को छोटा पढ़ेंगे। लाहुद्दीन, लाम को छोटा और हा को दाल से मिलाते हुए दाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से। मुखलिसीन लाहुद्दीन हुनफा, मद वाजिब है, इसको खींचेंगे 3 अलिफ के बराबर। वयुकीमुस्सलाता, क़ाफ जबान की जड़ से और खींचेंगे इसको, और मीम को स्वाद से मिलाते हुए स्वाद को पुर पढ़ेंगे और लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको खींचेंगे। वयुकीमुस्सलाता वयुतुज़्ज़काता, यहाँ हमजा के ऊपर जज़म है तो वयुतुज़्ज़काता, जा को जो है ये जबान की नोक ऊपर वाले और नीचे वाले 2 दांतों के अंदरूनी हिस्से से लगे तो ज़्यादा होता है। जा सीन स्वाद तीनों का एक ही मखरज है। वयुतुज़्ज़, थोड़ी सी सीटी की आवाज आती है। वयुतुज़्ज़काता, काफ को बारीक और खड़ी जबर, ता को छोटा पढ़ेंगे। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, जाल के ऊपर खड़ी जबर, लाम को छोटा पढ़ेंगे, काफ को छोटा पढ़ेंगे, दाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, और कौफ को पुर पढ़ेंगे। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा इन्नल्लज़ीना कफ़रू, नून मुशद्दद का गुन्ना करते हुए जाल को खींचेंगे। कफ़रू, काफ को बारीक और फा को छोटा और रा को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से। मिन अहलिल किताबी, मिन मिन नून पूरा अदा करेंगे क्योंकि इजहार हो रहा है। अहलिल किताबी, हा को गले के आखिरी हिस्से से, लिल किताबी काफ के नीचे जेर है, बारीक पढ़ेंगे और ता के ऊपर खड़ी जबर है, खींचेंगे खड़ी जबर की वजह से। अहलिल किताबी वल मुशरिकीना, काफ को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, नून को छोटा पढ़ेंगे। फी नारी जहन्नमा, फा को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, नून को अलिफ मद्दा की वजह से। जहन्नमा, नून मुशद्दद का गुन्ना अदा करेंगे। फी नारी जहन्नमा खालिदीन फीहा, खा गले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से और खा को पुर पढ़ेंगे और खड़ी जबर है इस वजह से खींचेंगे, और दाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से। फीहा, फा को भी खींचेंगे या मद्दा की वजह से और हा को अलिफ मद्दा की वजह से। उलाइका, यहाँ पर मद वाजिब है, एक ही कलमा में हरफ मद्दा के बाद हमजा है तो मद वाजिब है, 3 अलिफ के बराबर, इसको खींचेंगे। हुम शर्रुल बारिया, हुम
हा को गले के सबसे आखिरी हिस्से से, शर्रुल शीन, शर्रुल शीन तफशी है, आवाज इसकी फैल जाती है मुंह में, शर्रुल बारिया, रा को पुर पड़ेंगे और बारियाती है तो बारिया, एंड पे हा की आवाज है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाती, नून मुशद्दद का गुन्ना अदा करते हुए जाएंगे, लाम से मिलाएंगे। इन्नल्ला, फिर जाल, जाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, नून को छोटा पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है इसको खींचेंगे, मीम को छोटा पढ़ेंगे, नून को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से, वाव को छोटा पढ़ेंगे, आइन को भी छोटा पढ़ेंगे, मीम को भी छोटा पढ़ना है, वा आमी। आगे लाम को स्वाद से मिलाते हुए स्वाद को पुर पढ़ेंगे और खड़ी जबर की वजह से लंबा करेंगे, लाम को छोटा पढ़ेंगे, हा को खींचेंगे खड़ी जबर की वजह से और ता को छोटा पढ़ेंगे। वअमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, यहाँ पर उलाइका मद वाजिब है, इसको खींचेंगे 3 अलिफ के बराबर, 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींचते होते हैं इसको। हुम कोई गुन्ना नहीं करना, हुम खैरुल बारिया, ख्वा को गले के ऊपर वाले हिस्से से, और बारिया बारियाती है तो बारिया, रा को बारीक पढ़ेंगे। जज़ाउहुम मद वाजिब है, इसको खींचेंगे 2.5 से 3 अलिफ के बराबर, ऊ को छोटा पढ़ेंगे, हुम जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, इख्फा करेंगे इंदा रब्बिहिम, और रा को पुर पढ़ेंगे, रब्बिहिम, बा को छोटा और हिम, हा को मीम से मिलाएंगे। जन्नातु, नून मुशद्दद का गुन्ना अदा करेंगे और नून के ऊपर खड़ी जबर है खींचेंगे, जन्नातु अदनिन तजरी, दाल के ऊपर आइन को गले के दरमियान से निकालेंगे और दाल के ऊपर कलकला करेंगे और यहाँ इख्फा करेंगे, अदनिन तजरी, इख्फा करते हुए ता को जीम से मिलाएंगे और जीम के ऊपर कलकला होगा और रा को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, तजरी में तहती, यहाँ भी इख्फा होगा, में तहती, ता को हा से मिलाएंगे, हा गले के दरमियान से निकलेगा और ता के नीचे जेर है इसलिए इसको छोटा पढ़ेंगे। हल गले के आखिरी हिस्से से, हल अनहारू, यहाँ कोई गुन्ना नहीं करना, अनहारू, नून पूरा पढ़ के हा को गले के आखिरी हिस्से से और रा को छोटा पढ़ेंगे। तहती हल अनहारू खालिदीना फीहा, खा के ऊपर खड़ी जबर है और खा गले के ऊपर वाले हिस्से से, लाम को छोटा पढ़ेंगे, दाल को खींचेंगे या मद्दा की वजह से और नून को भी छोटा पढ़ेंगे। खालिदीना फीहा, फा को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, हा अबदा, यहाँ मद जायज है इसलिए इसको खींचेंगे 2.5 से 3 अलिफ के बराबर, और अबदन है तो रुकने की सूरत में अबदा। रदियल्लाहु अन्हुम, रा को पुर पढ़ेंगे और दौद, रदियल्लाहु, और लफ्ज अल्लाह को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि या लफ्ज अल्लाह से पहले या के ऊपर जबर है। अन्हुम, आइन को गले से निकालेंगे और हुम, हा को गले के आखिरी हिस्से से, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से और नून को पूरा अदा करके इजहार है यहाँ पर, अन्हुम वरदू अन्हु, रा को पुर पढ़ेंगे और द्वाद, द्वाद का मखरज आपने सही अदा करना है, जबान की करवट ऊपर वाले दाढ़ों की जड़ों से लगे, मसूड़ों से लगे तो द्वाद अदा होता है। वरदू अन्हु, अन्हु, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से और पूरा नून अदा करके हा आगे से निकालेंगे गले के आखिरी हिस्से से, इजहार होगा यहाँ पर अन्हु। ज़ालिका, जबान का सिरा और 2 दांतों के सिरे तो ज़ालिका, लाम के नीचे जेर है छोटा पढ़ेंगे और काफ बारीक है और छोटा पढ़ेंगे, ज़ालिका लिमन खाशिया, लाम को छोटा पढ़ेंगे, मन खाशिया पूरा अदा करेंगे, इजहार हो रहा है, नून के साकिन के बाद खा गले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा, लीमन खाशिया, और खा को पुर भी पढ़ा जाएगा और शीन के नीचे जेर है तो छोटा पढ़ेंगे, या के ऊपर जबर है तो छोटा पढ़ेंगे, लीमन खाशिया रब्बाहू,
रब्बा, रा को पुर पढ़ेंगे, बा के ऊपर शद है, और हु, रब्बाहू। अब चूंकि यहाँ पे रुकना है तो इसलिए पढ़ेंगे रब्बाह लिमन खशिया रब्बाह। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कवायद की, हरूफ की अदायगी की। चलें अब आप एक दफा इसको किरात के साथ सुन लें ताकि आप इसको समझने के बाद फिर किरात के साथ भी पढ़ सकें और इसको अपनी नमाज का हिस्सा बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरह फीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ वयुक़ीमुस्सलात वयु'तुज़्ज़कात वज़ालिक दीनुल क़य्यिमह इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइक हुम शर्रुल बरिय्यह इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइक हुम खैरुल बरिय्यह जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु ज़ालिक लिमन खशिया रब्बह। ठीक है, इसी तरह से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें और फिर इसको इंशाल्लाह अपनी नमाज के अंदर पढ़िएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें और इसमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।